Welcome in our YouTube channel Ambedkar is the Future Foundation. You have to like, subscribe and share more and more to every people of India. I am a IS aspirant. In the present time, I am an advocate and author. I have passed from Delhi University. I have also start preparation for an IS from Delhi. And this time I am going to discuss about an important topic, Parliament. This is a very important topic. We have to learn about Parliament. This is necessary to know about Parliament to every people of India. What is right and what is wrong, fundamental rights and fundamental duties. Constitution is the supreme power. Constitution is the supreme power. Parliament is an important topic to know every people of India. This is a very important chapter. It's an important chapter to learn each and every people of India. Every work in our constitution do in Hindi. This is because 60 to 70% people are living in rural areas. He mostly knows Hindi, which is very easy to learn to every people who are living in rural areas. So we are discussing a topic about Parliament. In Hindi we can say Sansad Vidhayika. Motion of thanks. Motion of thanks start after first general election. I like 2024 Lok Sabha general election. After appointment of government, President can give their speech, that is called motion of thanks. The first session after each general election and first session of fiscal year is addressed by the President. हर जनरल इलेक्शन के बाद, जब अभी 2024 में जब इलेक्शन होगा, इसके बाद जब सरकार का गठन होगा, इसके बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है भाषण दिया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा और दोनों सेशन में किया जाएगा. मनी बिल्स, it comes under article 110. This is a very important topic, very important point. It can ask in every exams. So we have to learn this point. Money bill can be passed by the Lok Sabha only, not by the Rajya Sabha. No any discussion in the Rajya Sabha, pass or reject. Rajya Sabha accept or reject, can return the bill in the Lok Sabha within 14 days. Money bill for recommendation. If it is not returned in 14 days, it understood as bill can be passed by the Lok Sabha. यदि 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा जो है बिल जो है लोकसभा को वापस नहीं करता है, तो इस स्थिति में यह समझा जाएगा कि मनी बिल जो है लोकसभा जो है पास कर दिया है. The regulation of the borrowing of money by the union government. मनी जो है पैसा जो है लाया जाता है वो जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो है सब रखा जाता है, और यहीं से जो है ऑल द सैलरीज एंड द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड to the Supreme Court and the High Court and
member of Lok Sabha and Rajya Sabha president, all the fund is provided from the consolidated fund and salary is provided to every people who is member of Lok Sabha and Rajya Sabha. जो राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है, उसको जो है कंसोलिडेटेड फंड जो है इसमें जो है सैलरी दिया जाता है, उसका फैसिलिटी दिया जाता है। लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मेंबर। फाइनेंस बिल, मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 171, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 173 एंड मनी बिल अंडरस्टूड एज फाइनेंशियल बिल। मनी बिल को जो है फाइनेंशियल बिल भी समझा जाता है। ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। मनी बिल जो है फाइनेंशियल बिल हो सकता है, लेकिन जो है फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल नहीं हो सकता। मनी बिल कैन बी डिस्कस बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल जो है वह लोकसभा जो है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा जो है डिस्कस किया जाता है, चर्चा किया जाता है और उस पर जो है मुहर लगाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब फाइनेंशियल ईयर जो है ये क्वेश्चन जो हमेशा रेज होता है, इस टॉपिक को जो हमेशा याद रखें। फाइनेंशियल ईयर कब होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इट बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड विथ 31 मार्च। बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 के तहत संविधान में जो है दर्ज है। अब ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल जो है सामान्य बिल होता है, मनी बिल जो है सबके लिए होता है। ये जो क्या डिफरेंस है, ये जो पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है यूजफुल है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर IAS द फ्यूचर फाउंडेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और कोई भी यहाँ पे चार्जेज नहीं है और इसे जो है तैयारी करें। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और द राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है और राज्यसभा में भी बताया जाता है, लेकिन जो है मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर्स और बाय प्राइवेट मेंबर। ऑर्डिनरी बिल जो है मिनिस्टर और जो है मंत्री और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी जो है सदस्य के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल जो है रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति जो है, तभी जो है वो डिस्कस होता है। इट इज इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ऑर्डिनरी बिल जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का जो है उनका बात का जो है उनका जो है देने का जरूरत नहीं है, लेकिन इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इट कैन बी रिजेक्ट एंड अमेंड बाय द राज्यसभा। यह जो है ऑर्डिनरी बिल जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, अमेंड भी हो सकता है राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल जो है इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड बाय द राज्यसभा। मनी बिल जो है ना रिजेक्ट हो सकता है ना अमेंड हो सकता है राज्यसभा में। इट कैन बी डिटेन बाय राज्यसभा, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ। ऑर्डिनरी बिल जो है मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है 6 महीने का होता है, लेकिन इट कैन बी डिटेन इन राज्यसभा फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज ओनली। मनी बिल जो है वो 14 दिन में जो है ज़्यादा समय उसका सिर्फ 14 दिन है, वो राज्यसभा में जो है डिटेन किया जाता है, बताया जाता है। इट कैन बी रिजेक्ट और अप्रूव्ड बाय द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। ये जो है रिजेक्ट भी किया जाता है या अप्रूव भी जो है माना भी जाता है ये, लेकिन रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर से उसके बारे में सोचने के लिए जो है इसमें जो है किया जाता है वो ऑर्डिनरी बिल है, लेकिन इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अप्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन जो है रिकंसिडरेशन द्वारा जो है रिटर्न नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर सोचने के लिए जो है प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति को जो है नहीं भेजा जा सकता है। इफ इट डिबेट इन द लोकसभा
lead to resignation of the government, may lead to resignation of the government. It defeat in the Lok Sabha may lead to resignation of the government. यदि ये लोकसभा में जो है डिफीट हो जाता है, हार जाता है, तो ये गवर्नमेंट इसमें जो है रिजाइनेशन दे सकता है, अपना जो है रिजाइनेशन लेटर दे सकता है. इफ इट डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू रिजाइनेशन ऑफ द गवर्नमेंट. लोकसभा में यदि जो है मनी बिल में जो है डिफीट होता है, हार जाता है, तो ये गवर्नमेंट का जो है रिजाइनेशन. ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे जो है स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, पढ़ें, ध्यान दें इस पे. ऐसी बातों के साथ थैंक्स.